time, so let's start. ओके सो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, आज का जो इम्पोर्टेंट लेसन है दैट इज बेसिकली अबाउट लिंकिंग योर कार्ड्स विद द प्लैनेट्स एंड द ज़ोडिएक साइंस. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए दो तरीके से इस चीज को आप लोगों ने समझना है. इसको दो तरीके से समझिए. 56 हमारे minor arcanas है. All the cards, all the 78 cards can be linked to astrology, to the Jyotish Shastra. So 56 minor arcanas, we have 14 bonds. 14 bonds. Okay, 14 bonds which are the fire element. Fire element. So what we are doing is the arcanas are also known as pip cards. Okay, pip cards. So these pip cards are actually linked to the elements. Okay. So 14 bonds जो हैं, that is the fire element. Then we have our 14 cups. They Water are the element. water element. Okay. Then next is 14 pentacles. Earth element. हाँ, वो हो गया आपका वायु तत्व. आपका पृथ्वी तत्व. Pentacles is that is the earth. Okay. And the last one will be 14 swords. Swords. 14 swords, that is going to be the air element. Air element. Now what is important is I want you now to look at what you will see now here. Okay, first is the wand suit. Okay, wand suit means the fire element here, and fire element means these three particular signs, that is Leo and Sagittarius. Okay, so what I want you to do here is basically what we are doing here is, I'll tell you, we will take down the 12 signs. The 12 signs are extremely important to understand here. Okay, the 12 zodiac signs. What are the 12 zodiac signs? Aries, अच्छा, Taurus. क्या करना है आपको? You have to write it always as 1, 2, 3. The numbers are very important. So Aries, Taurus. Number 3 will be Gemini. ये the sequence है. This is very important. Okay, sequence is very important because the sequence, the signs in the sequence are getting repeated element wise. Okay, so we will have the triplicity getting formed as per this pattern. Pattern. So 1 is Aries, 2 is Taurus, 4 is Cancer. Okay, then 5 is going to be Leo, and 6 will be Virgo, 7 will be Libra, then 8 will be Scorpio, 9 will be Sagittarius, 10 will be always Capricorn. 11 will be Aquarius, and Pisces. Okay, so this sequence has to be followed strictly every time. This does not change. This is in the Jyotish Shastra. You will always start with the first one. Okay. So, and here what is happening? Actually, what is the Hindu New Year? We know the Hindu New Year as the Baisakh. Baisakh month. Yeah, the Baisakh. Okay. So what is happening there is when the sun is entering the sign of Aries on 13th of March, April every year. That is the time when your Aries, actually the sign of Aries, it means that the sign of Aries has started and sun is now going to be, that is the Rashi. So what is Rashi? Rashi means the sun is moving to a particular Rashi or a zodiac. So that is why the Hindu New Year also always starts with Aries, and Aries is traditionally conventionally taken as sign number 1. It is also known as the toddler or the infant of the zodiac. Okay, because ये numbers हैं, ये numbers मतलब जो राशियां हैं, ये numbers को भी represent से particular number से associate होंगे. 6 नंबर की राशि, 8 तो जो 6 नंबर के जो वो होंगे उनके आपके क्या कहते हैं क्वालिटीज, वो इन राशियों में भी जाएंगे. 6 नंबर के किसमें? कार्ड्स में? कार्ड्स में नहीं, जैसे नंबर के होते हैं ना, जैसे कि 1 नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिगनिंग के ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, उसका न्यूमरोलॉजी से ऐसा वाला कनेक्शन नहीं है. ये तो बहुत पुरानी साइंस है. ये इसी तरीके से है क्योंकि 360 डिग्रीज का जो हमारा पूरा ज़ोडिएक होता है, पूरा जो ब्रह्मांड है,
उसमें हम लोग इस सीक्वेंस में इन कॉन्स्टेलेशन को ठीक है, करते हैं। तो मतलब उसको डिग्रीज में डिवाइड करा होगा, 360 डिग्रीज को 30 डिग्रीज का है ना, 30 डिग्रीज का एक साइन हो जाता है, एक साइन होगा। अभी हम एस्ट्रोलॉजी स्प्रेड भी करेंगे, दैट इज व्हाई योर हॉरोस्कोप इज डिवाइडेड इनटू 12 हाउसेस, 12 हाउसेस, ओके, बिकॉज इट विल कंटेन दीज 12 साइंस इन दैट। तो वॉन्ड्स का जो सूट है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ट्रायड देखने हैं, सो यू विल नाउ सी नंबर 1, you will see number 5 and you will see number 9. Okay. So 1, 5, 9 are going to form a triad, the fire triad. Fire element. मतलब त्रिशूल, okay? त्रिशूल. So the fire triad will be Aries, Leo and Sagittarius. ठीक है, 1, 5, 9. Similarly, you will have Taurus, Virgo and Pisces. And Capricorn. हाँ, so 1, 5, 9 here. Then here we come to Pentacles. यहाँ पे ले लीजिए 2, 6 and 10. ठीक है, हाँ 1, 2, ठीक है, फिर अर्थ एलिमेंट आ गया, क्योंकि सेकंड वाला जो हमारा साइन है वो टॉरस का होता है, टॉरस इज एन अर्थ साइन। फिर हमारा थर्ड वाला जो है वो जेमिनी आता है, वो होता है हमारा एयर का, तो हमारा आएगा 3, 7 and 11, okay, which means Gemini, Libra and Aquarius. Yeah, these three are going to be the air signs, the air signs. And fourth wala jo hai, that is 4, 8, 12, okay, that is the water sign. क्वालिटीज क्या होती है, वॉन्ट्स वाला जो सूट होता है, ब्रीफली आप लोग जो है ना इसको डिटेल में पढ़िए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्वालिटीज ऑफ द साइंस को जानना और क्वालिटीज ऑफ द प्लैनेट्स को भी जानना। तो इसकी सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था, यू नीड टू पिक अप अ बुक ऑन बेसिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो हमारी जो आईफास की जो ज्योतिष का जो पहला हमारा लेवल है, ठीक है, ज्योतिष रतन में जो टेक्स्ट बुक यूज होती है फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी करके, ठीक है, वो आप लोग सब ना अपने लिए एक एक कॉपी मंगा के रख लो, वो बहुत यूजफुल रहेगी अभी भी और बाद में भी। आपको उसकी एक हार्ड कॉपी मंगा लो और उसको रख लो, वो बेस्ट बुक है क्योंकि उसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुआ है। ओके, तो उसमें क्वालिटीज भी हैं सारे साइंस की। अब एरीज, लियो और सजिटेरियस को हम लोग फायर साइंस मानते हैं। इनकी मेन क्वालिटीज होती है लीडरशिप क्वालिटीज, ambition, they are very ambitious, leadership qualities are very high, then they want to start new projects, they do not have the patience to finish that project, okay, they want to start many things and then they move on to different things to start something new again। तो इन लोगों को नोवेल्टी और चैलेंज और नयापन जीवन में बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, और इनको जितना इंटेलेक्चुअली आप चैलेंज रखोगे, जितना इनके सामने नई नई चुनौतियां, नए नए एक्सपीरियंसेस दोगे, उतना ही ये एंगेज्ड रहते हैं। और क्योंकि फायर साइन है तो थोड़ा सा फायर की तरह ये लोग एक्साइटेड भी जल्दी हो जाते हैं और कूल डाउन भी जल्दी हो जाते हैं। तो इट कैन बी टेम्परामेंटल इश्यूज भी आप कह सकते हो, एक्साइटमेंट भी कह सकते हो, पैशन भी कह सकते हो, कोई भी चीज जो इनकी एकदम अप जाती है वो डाउन भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये लीडर्स कहलाते हैं, दे आर नोन एंड दिस इज द एक्शन ट्रायड। तो वॉन्ट्स का जो सूट है वो आपको, या फायर एलिमेंट जो है वो हमारे को एक्शन एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। अब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम लोग अभी 12 कार्ड का स्प्रेड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी स्प्रेड करेंगे, उसमें जब जब आप फायर एलिमेंट का साइन देखोगे, सपोज 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, कोई भी वॉन्ड्स आता है, यू हैव टू इमीडिएटली कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट and mostly the positive qualities of the fire element। मोस्टली हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज लेकर चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव देखिए तब होता है जब एक ही स्प्रेड में आपको बहुत सारे फायर एलिमेंट मिल जाते हैं। एक ही 12 कार्ड के स्प्रेड में अगर आपको 4 या 5 बॉन्ड्स मिल जाती हैं, फिर क्या होता है, वो फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली एलिमेंट की फिर तो इम्बैलेंस हो गई ना। तो वो किसी भी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो एलिमेंटल बैलेंसेस होना ही चाहिए, ओके, बट तो बेसिकली आप लोग पॉजिटिव लेके चलोगे, मतलब वो उसके लिए फिर एक ऑब्स्टिकल की तरह वर्क करेगा उसकी कुंडली में, फिर नेगेटिव्स ऑफ दैट साइन आ जाएंगे ना फायर के। फिर हो सकता है कि वो पर्सन बहुत एरोगेंट हो, पर्सन हॉट टेम्पर्ड हो सकता है, पर्सन ओवर एम्बिशियस हो सकता है, फिर सेकंड जो है हमारा टॉरस और वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये हमारा पेंटिकल्स का ट्रायड होता है, पेंटिकल्स का ट्रायड या पेंटिकल्स का सूट, और ये हमारे
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ मैच करेगा। ठीक है। अच्छा, इनकी क्या होती है सबसे ज्यादा, दे आर नोन एज द प्लानर्स ऑफ द ज़ोडिएक, प्लानर्स एंड द डिटेल्ड पर्सन, क्योंकि इनकी खासियत होती है कि ये तीनों साइंस, सबके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन कॉमन क्या होगा, दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड एनालाइजर्स। एक, इनका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो सेकंड पॉइंट इज पेशेंस लेवल इज वेरी हाई एंड दे आर विलिंग टू वेट एंड वॉच एंड दे आर नॉट इन एनी हरी, क्योंकि इनको ये पता है कि जब हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो टाइम के साथ ही ग्रो करेगी ना, तो इनको ये वाली ना मतलब मैच्योरिटी होती है और पेशेंस होती है, तो बैठते हैं। पृथ्वी तत्व को कैसा सहनशील माना गया है, सहनशील है ना, तो पृथ्वी तत्व में आराम से आप क्रॉप लगा दो, फिर वेट करो, क्रॉप तो अपने टाइम से ही उगेगी ना। तो सेम वे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आर नोन फॉर देयर calm mind, patient attitude, and for their detail orientation. Okay, they're very detail oriented people. Then in the cup suit, third जो आएगा वो हमारा आएगा air का. So 3, 7 and 11 is known as the air triad. उसमें हमारे Gemini, Libra, Aquarius, they are known as thinkers of the zodiac. Now these are people who are very intelligent. So for them, ideas are very important. Like they themselves will have a lot of ideas and they want instantly to share the ideas with somebody. Okay, so all three signs are extremely intelligent. They are all very people-oriented signs. They love people. They love talking and sharing, interacting. इनको लोग चाहिए बातें बताने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए, और किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को कंसेप्चुअली और आगे जाके मैनिफेस्ट रूप में उसको डेवलप करने के लिए। मतलब मैम ये फिर टॉकेटिव टाइप के होंगे थोड़ा सा? टॉकेटिव भी होते हैं क्योंकि सोर्स क्या क्या कंट्रोल करता है आपके माइंड को सबसे ज्यादा, और सेकंड चीज कम्युनिकेशन, माइंड हाँ कम्युनिकेशन है ना, ये तीनों है ना, ठीक है, माइंड भी और कम्युनिकेशन। ओके, मतलब अगर उन्होंने अपने कम्युनिकेशन पे अच्छे से कंट्रोल करा, मतलब दिमाग से चले तो ये बहुत हाई सक्सेस पे जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। Otherwise, they can land into problems because sometimes they talk a lot and they don't do things. Yeah. Because there are so many, वो होता है ना, ideas, they have so many ideas, but what about action? So action also should be there a little bit. So that's why if you see too many swords in a particular suit, you know this person is very high on talking and analyzing and thinking all the time. But what about the action? You have to look for that. And the fourth one is the water element in the cup suit. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, these are known as the feelers. They are the emotional. It's the emotional triad, or they are known as the feelers of the triad. They feel a lot. And इनकी common क्या होता है? एक तो firstly they are extremely sensitive. Sensitive होते हैं, empathetic होते हैं, दूसरों की संवेदनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसमें क्या होता है ना, कैंसर एक लेवल का होगा, स्कॉर्पियो उससे ज्यादा होगा, पाइसेस सबसे ज्यादा होगा। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इमोशनल इन तीनों में से कौन है, पाइसेस। सबसे तो मैम ये हर एक सूट के लिए फिर डिपेंड करेगा ना, जैसे बॉन्ड्स वाटर में ज्यादा है। अच्छा, वाटर में ज्यादा है, हाँ ये वाटर में ज्यादा है। ऐसे ही जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में एक या दो क्वालिटीज होती हैं। जैसे टॉरस जो होता है वो दैट इज वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस, मतलब उसको सिक्योरिटी की बड़ी चिंता होती है, वो इमोशंस बाद में देखता है, सिक्योरिटी पहले देखता है। वर्गो जो होगा वो क्रिटिकल बहुत होता है, तो वो जो है वो इतना वो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बिजनेस वर्गो। तो वर्गो जो है उसमें थोड़ा एक्शन भी आ जाता है। एंड कैप्रिकॉर्न इज वेरी एम्बिशियस एंड मनी माइंडेड। तो वही चीज आप देखोगे, अगर सिक्योरिटी यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी थी, फिर उसके बाद वो हार्ड एंड सिस्टमैटिक वर्क पे कन्वर्ट हुई, कैप्रिकॉर्न तक जाते जाते वो ऑब्सेशन विद मनी बन जाती है, लाइक अ कोड कार्ड की तरह से। जैसे पहले वो थोड़ा सा एनर्जी आप कह सकते हो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है वो भी हम देखेंगे जब हम कार्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे। कैप्रिकॉर्न इज विद द डेविल कार्ड। कैप्रिकॉर्न का जो साइन होता है, क्योंकि ये 12 साइन, अभी हम 12 साइन और 10 ग्रह, आप अभी प्लैनेट्स अभी अपने 22 कार्ड्स के साथ भी रिलेट करोगे, तो वहां पर कैप्रिकॉर्न का कार्ड डेविल के अंदर आएगा। तो डेविल के अंदर उसका मनी माइंडेडनेस, उसका सुपर हाई लेवल ऑफ एम्बिशन,
वो आपको देखना है, वो स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। ठीक है, 4 ये। तो आपने जब जब भी माइनर आर्कनास आने हैं तो ये भी चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है साथ साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मेजर आर्कना कार्ड्स आर 22